ચાલો બાળકો, આપણે ધોરણ 6 હિન્દીની અંદર આપણે દ્વિતીય સત્રના 1 થી 7 પાઠ પૂર્ણ કર્યા હતા. હવે પાઠ 1 એને આપણે સ્વાપોથીમાંથી જોઈશું, જે મેં તમને કરાવ્યું છે, પરંતુ આપણે ફરી એકવાર પરીક્ષા આવવાની છે એટલા માટે પરીક્ષાને લગતું હોવાથી હું ફરી તમને એકવાર કરાવીશું. હવે પહેલી કવિતા છે કે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. તો એની અંદર મેં કાવ્ય તમને સમજાવેલી હતી. હવે આપણે એના વિકલ્પ જોઈશું. પહેલું છે कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम उस प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए. અહીં पहलू है कि काव्य में ईश्वर को किस रूप से संबोधित किया गया है. कहे છે કે કાવ્યમાં ઈશ્વરને કયા નામથી સંબોધિત કરવામાં આવેલું છે. તો એના અહીં ઓપ્શન આપણને આપ્યા છે. એ માતા, બી પિતા, સી ભ્રાતા, ડી દાતા. તો તમને બાળકો ખબર જ છે કે એનો ઓપ્શન કયો આવશે, તો ડી દાતા. ऑप्शन डी दाता. कवि किसकी रोशनी मांगता है. कवि कोनी रोशनी मांगे छे. ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान, डी विज्ञान. तो एमनो उत्तर आवशे सी ज्ञान. त्रीजू है दुश्मनी से हमें किससे खो जाने का डर है. तो ऑप्शन है ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के, डी धन के. तो एनो जवाब आवशे बी खुद के. આપણે કોનાથી ખો જવાનો ડર લાગે છે, તો खुदથી, પોતાનાથી. दुश्मनी से हमें किससे खो जाने का डर है, तो खुद के. जान चौथुं है जाने कैसे खाली जगह थमी है. जिंदगी, धरती, सांस, आशा. तो जवाब आवशे बी धरती. जाने कैसे धरती ये थमी है. के छे के धरती एनो आपणे काव्यमां जोयुं हतुं के धरती पर पापनो बोझ वधी रहेलो हतो अने एना कारणे धरती ए बधुं सहन केवी रीतना करी शके. अने कहे छे भगवानने के हे भगवान, ते जे आ दुनिया बनावी छे ए दुनिया नष्ट थई जई रही छे, एटले तू जे धरती पर जे बोझ थई रहेलो छे, पाप वधी रहेला छे, तेने तू लई ले. एटले कहे छे के जाने कैसे धरती ए थमी है. बीजू छे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. અહીં આપણને કૌંસ આપી દીધા છે. કૌંસમાંથી આપણે યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરવાનો છે અને ખાલી જગ્યા લખવાની છે. તો પહેલી છે કે મન કા ખાલી જગ્યા કમજોર હોના. તો આપણે ખબર જ છે કે મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના. આપણે કવિતા છે એમાં કે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના. મનનો વિશ્વાસ ક્યારે પણ ડગમગે નહીં, કે ક્યારેય પણ કમજોર થાય નહીં. હર ખાલી જગ્યા से बचते रहे हम बुराई, के हर बुराई से बचते रहे हम. के ये कविता आपकी है कि तू अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. के छे के जे अज्ञाननो अंधकारो छे तेने दूर करीने अमने ज्ञाननी रोशनी आप. अने हर बुराई के खराब कामोथी अमे दूर रहीए अने अमने जेवी पण तमे जिंदगी आपो ते भलाईथी भरेली होवी जोईए. एटले के छे के हर बुराई से बचते रहे हम. सबका जीवन ही बन जाए खाली जग्या. तो आवशे मधुबन. के सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. कि फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन. के આપણે હંમેશા ખુશીઓના ફૂલ બાંટવાના છે, હંમેશા બધા સાથે હસતા રહેવાનું છે, એટલે અને બધાનું જીવન કેવું મધુવન એટલે સુંદર બગીચા જેવું બને એવી આપણે પ્રાર્થના કરવાની છે. એટલે કહે છે કે સબકા જીવન ही बन जाए मधुबन. हर कर दे पावन हर एक मन का खाली जग्या.
तो શું આવશે? કોના। कर दे पावन हर एक मन का खाली जगह, तो कोना। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर मन का, तो खाली जगह में શું આવશે? કોના। કે છે કે હે ઈશ્વર, તું પોતાની કરુણાનું જળ વહાવીને બધાના મનને એક પવિત્ર કરી દે। ખો ન દે ખુદ કો હી ખાલી જગ્યા સે, પાંચમી ખાલી જગ્યા છે કે ખો ન દે ખુદ કો હી ખાલી જગ્યા સે, તો દુશ્મની છે। શું કહે છે કે હમ અંધેરે में है रोशनी दे, ખો ન દે ખુદ કો હી દુશ્મની છે। કહે છે કે હે ભગવાન, અમે અજ્ઞાન અંધારામાં છે, તું અમે જ્ઞાનની રોશની આપ, અને અમે એકબીજાથી દુશ્મની ક્યારેય ન કરીએ, અને એને મિટાડવા માટેની અમને શક્તિ આપ। તો કહે છે કે ખો ન દે ખુદ કો હી દુશ્મની સે, બોજ ખાલી જગ્યા સે તું ये उठा ले, તે મમતા। શું આવશે? કે બોજ ખાલી જગ્યા સે તું ये उठा ले। તો કહે છે कविता આપણે જોઈ હતી કે पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। કહે છે કે તું ધરતી પર જે પાપ અત્યાચાર જુલ્મ વધી રહેલો છે તેને તું ઉઠાવી લે, લઈ લે, જેથી કરીને ધરતી આ બધું કેવી રીતના સહન કરી રહેલી છે, અને જો તું આ ના કરશે તો તે જ આ બનાવેલી તારી જ દુનિયા નષ્ટ થઈ જશે। એટલે કહે છે કે બોજ મમતા સે તું એ ઉઠા લે। આપણે એ કવિતા આપણે શીખ્યા હતા બાળકો, તો તમે આ સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો અને નોટની અંદર લખી દેજો। પાછળ ત્રીજું છે સહી વાક્યાંશ चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू છે भूल कर भी हमसे कोई खाली जगह ना हो, तो શું આવશે? अन्याय ना हो, अपराध ना हो કે ભૂલ ના हो, तो भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो, तो क આવશે। हम सभी को खाली जगह, तो खुशियों के फूल बाटे, इंसानियत के फूल बाटे, क ज्ञान के फूल बाटे, तो आवશે खुशियों के फूल बाटे, खुशियों के फूल बाटे, કે અમે આપણે સૌએ બધાને ખુશીઓના ફૂલ બાંટવાના એટલે કે વહેંચવાના છે। ત્રીજું ईश्वर की रचना का खाली जगह, अपमान नहीं होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए, आरंभ नहीं होना चाहिए, तो એમનો જવાબ આવશે કે અંત નહીં હોના चाहिए। જે ઈશ્વરે બનાવેલી રચનાનો શું થવું જોઈએ? દુનિયાનો અંત થવો જોઈએ નહીં, તો એનો જવાબ આવશે બ, अंत नहीं होना चाहिए। चौथुं છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू છે हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो એમનો જવાબ આવશે हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। કહે છે કે આપણે કેવા રસ્તા ઉપર ચાલવું જોઈએ? તો કહે છે કે નેક કે રાસ્તે પર ચલના ચાહીએ, જેનાથી જીવનમાં સુખ અને શાંતિ મળી રહે। પહેલો પ્રશ્ન છે કે હમે कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजू છે आने वाला कल कैसा होगा, तो आपने खबर है कि आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। जे આપણને આવનારો દિવસ છે તો કેવો હોવો જોઈએ? તો કે જે આગળ વીતી ચૂક્યું છે તેનાથી બહેતર એટલે એનાથી સારો હોવો જોઈએ, એટલે કે આને વાલા કલ बीते हुए कल से अच्छा होगा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? આપણે ભગવાનને કેવી જિંદગીની કામના, કેવી જિંદગી આપણી હોવી જોઈએ તેની કામના કરીએ, તો એનો જવાબ છે कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। કહે છે કે
ઈશ્વર પાસે આપણે એવી જિંદગી માંગવી જોઈએ કે આપણી એ જિંદગી एकदम सारी भलाई थी भरेली होवी જોઈએ। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, अपना मनना विचारों केवा ना होवा જોઈએ तो हमारे मन में किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। કહે છે કે આપણા મનની અંદર બીજા પ્રત્યે બદલો લેવાની ભાવના હોવી જોઈએ નહીં, કે આપણે કોઈએ મને આવું કીધું તો મારે પણ એને એવું જ એની સાથે એવું જ વર્તન કરવું, એવું આપણા મનના વિચારો હોવા જોઈએ નહીં। પાંચમું છે हम किसके बारे में सोचना चाहिए, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए तो એનો જવાબ છે हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। કહે છે કે આપણને શું મળ્યું છે, દૂસરાથી બીજાથી આપણને શું મળ્યું છે એવું ના વિચારવું જોઈએ, પરંતુ આપણે બીજાને શું આપ્યું છે તે વિચારવું જોઈએ। કહે છે કે हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, બીજાથી આપણને શું મળ્યું છે એ આપણે વિચારવું ના જોઈએ। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है, કે અમે બીજાને શું આપ્યું છે એ આપણે સોચવું વિચારવું જોઈએ। हमारा मन पावन कैसे बनेगा तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां है कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों। कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है कि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। કહે છે કે કવિતામાં કેવું જળ વહાવવાની વાત કરી રહેલી છે તો કવિતાની અંદર કરુણાનું જળ વહાવવાનું કીધું છે, પરંતુ કેમ તો કેમ કે એનાથી આપણા મનને પવિત્ર બનાવવાનું છે। किसकी रचना का आठमું છે किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए तो એનો જવાબ છે कि ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए, કે જે ઈશ્વરે બનાવેલી દુનિયા છે એનો અંત થવો જોઈએ નહીં। એટલે કહેવાય છે કે ઈશ્વર કી બનાઈ હુઈ રચના કા અંત નહીં હોના ચાહીએ। બાળકો તમારે પણ આનો પણ એક સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો અને એ સવાલના જવાબ પણ તમારે નોટબુકમાં લખવાના છે અને વાંચજો, જે પરીક્ષામાં આવશે એટલા માટે વાંચવાના રહેશે। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलू है मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। कहे छे कि मन नो विश्वास कमजोर ना हो ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो हवे आपणे एनो जवाब जोईशुं। ए आपणो जवाब थोड़ा लांबो आवशे कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। कहे छे कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करे छे। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असंभव है। इन अत्याचारों का अंत नहीं दिखाई देता। कभी भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, कभी भगवान के पास प्रार्थना करता है कि तू अपनी शक्ति से लोगों का विश्वास जीत ले। के छे प्रश्न एक नी अंदर के लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है,
सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है वे साधारण आदमी उसे रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत हमें दिखाई देता नहीं है। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि तू अपनी शक्ति से लोगों को विश्वास जीत ले। बीजो प्रश्न है, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और अत्याचार बेबसी है। हर आदमी डरा डरा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई देती है जो इन अत्याचारों का सामना करे और इनमें लोगों की शैतानी से वह मिटा सके। कहे छे कि धरती पर हर तरफ क्या है तो क्यों? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई देती जो इन अत्याचारों का सामना करे और इनमें लोगों की शैतानी से वह मिटा सके। तीजू छे, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री से भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बने हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए सुख, शांति, प्रेम और मैत्री, इसीलिए इस अशांति और सुख शांति से मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। कहे कि जगत में सुख शांति मैत्री से भाव अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन जगत में बुराइयां बढ़ रही है जिसमें सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के लिए शत्रु बने हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने तैयार है। सुख शांति प्रेम और मैत्री, इसीलिए इन अशांति आप सुख शांति प्रेम और मैत्री का अभाव होने के कारण इस अशांति और सुख शांति से मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? तो इनो जवाब है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित कर हमें खुश रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। उनके जीवन में कांटे होंगे। कांटों चुभने से बचने के लिए हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। कहे छे कि कवि कि हम सभी को खुशियों के फूल बांटने चाहिए। आप अपने आसपास के लोगों को खुशी बनाना, लोगों को खुशी देना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देकर हमें खुश रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। उनको जीवन में कांटे होंगे तो कांटे चुभन से बचने के लिए सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। पांचवू है, सबका जीवन बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? तो मधुवन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिलते हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। मैं फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। उसका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार अपना जीवन
सुखी बन जाएगा। कहे छे के मधुवनનો अर्थ थाय छे के बगीचा के जेमा सुंदर अने खुशबूदार फूल खिलते हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। मैं फूल पाकर लोगों को चेहरे पे उदासी नहीं देखनी चाहिए। उसका मन प्रसन्नता से भर जाना चाहिए। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेगा। इसी प्रकार अपना जीवन सुखी बन जाएगा। तो अहीं आपणा 5 प्रश्नों छे ए लांबा वाक्यना प्रश्नों छे, 4-5 લીટીમાં લખવાના પ્રશ્નો છે। બાળકો તમારે પણ જોઈ લેવાના, એકવાર વાંચી લેવાના અને નોટબુકમાં લખવાના રહેશે। તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી શકશો અને સ્ક્રીનશોટ પાડીને તમારે લખવાના રહેશે। હવે પ્રશ્ન 6, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा लिखे। अहीं वाक्यनी अंदर साचो शब्द मूकीने आखुं वाक्य बनाववानुं छे। पहलुं छे राधा पढ़ने में तेज है, खाली जग्या खेलने में नहीं। तो एना जग्या शब्द आवशे लेकिन, कि राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेलने में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वो गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो क्योंकि सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल गया। फिर भी मैं समझता हूँ खाली जगह वो क्या कहना चाहते हैं। कि मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहते हैं। आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफ़ी। या मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूँ। अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। हवे अहीं छे प्रश्न 7, उदाहरण अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाविए। तो पहलू उदाहरण आप्युं छे कि कुछ, तो कुछ शब्द परथी आपणे एनुं वाक्य बनाववानुं छे। ते कुछ कपड़े गंदे हैं, कुछ कपड़े मैंने खरीदे। पहलू है कि सुंदर, तो सुंदर परथी आपणे एक सरस वाक्य बनाववानुं छे। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, तो गाय के 4 पैर होते हैं। उसका भाई विदेश गया, उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। અહીં જે વિશેષણ આપ્યા છે એ વિશેષણનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાનું છે। લાલ, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। बाळको आ विशेषणનો उपयोग करवानो छे અને એનો ઉપયોગ કરીને તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। તમે કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો, પરંતુ એની અંદર આ જે શબ્દો આપ્યા છે એ શબ્દો આવવા જોઈએ। હવે संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क वत्ता क बराबर क, तो एनो अर्थ शब्द बनाववानुं छे धक्का। तो एना परथी वाक्य बनाववानुं छे कि उसने मुझे धक्का मारा। च वत्ता च, तो एने बे शब्दों ने जोड़शो तो शुं बनशे च। तो एना परथी आपणे शब्द बनाववानुं कच्चा। व कच्चा आम है। त वत्ता त, तो एनो शब्द बनशे कुत्ता। कुत्ता वफादार प्राणी है। न वत्ता न, तो न, तो एनो शब्द बनशे अन्न। अन्न खेत में पैदा होता है। द वत्ता ध, तो एनो शब्द जोड़शुं तो द, तो एनो शब्द बनशे बुद्ध। तो वह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। द वत्ता व, तो द्वा, तो एनो आ शब्द बनशे विद्वान। य विद्वान पुरुष है। श वत्ता व, तो स्व, तो एना परथी शब्द बनाववानुं छे विश्व। विश्व में शांति होनी चाहिए, तो एनुं आपणे वाक्य बनाव्युं छे। ह वत्ता य, तो य,
तो एनो शब्द बनशे असह्यी, असह्यी अथवा तो असह्य। आज असह्य गर्मी है। द वत्ता म तो म, तो एनो शब्द बनशे पद्म। उसके चरण पद्म जैसे है। काव्यनो भावार्थ समझावानो छे कि बेर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना, कहते कि हमारे हमसे किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी दुश्मनी हो जाए तो हमारे मन में उससे बदला लेने की भावना पैदा न हो। अपना करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, कि हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबका मन का हर कोना पवित्र कर दे। हवे अहीं निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो एक चकली वृक्ष पर रहती हती। तेनो माळो वृक्ष ऊपर हतो। माळामां तेना 3 बच्चाओ हता। ते पोताना बच्चा साथे रहती हती। एक दिवस एक शिकारी त्यां आव्यो ने चकलीने मारी नाखवा ईच्छतो हतो। चकलीए बच्चाने माळामां माथुं नीचुं करीने बेसवा कह्युं। ते पोते त्यांथी उड़ी गई अने પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। બાળકો, આ પરીક્ષામાં પૂછાશે નહીં, પરંતુ તમારે એને વાંચવાનું રહેશે। હવે बारिश होने से धरती हरी भरी रहती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो कहे छे कि गर्मी के मौसम में गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले इतना अच्छा होगा। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और उन्हें आनंदित कीजिए। बारिश आने से धरती हरी भरी रहती है, खेतों में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। वर्षा का पानी नदी और कुछ कुएं में जाता है। पानी के बिना तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है। जैसे पानी पीने, नहाने और खाना बनाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। कहे छे कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बारिश वरसाद थाय तो शुं थाय, तो आपणने खावा माटे पीवा माटे पाणी मळे, नहावा माटे पाणी मळे, खेतों माटे पाणी मळे। तो कहे छे पाणी वगर आपणुं जीवन शक्य नथी। अने बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो एना विषय शुं कहे छे कि बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ कीचड़। पानी तो हमें कुछ नदी आदि से भी मिलता है, लेकिन बारिश होने से कीचड़ हो जाता है, जिसने कारण चारों ओर गंदगी फैलती है और हमें बीमारियां बढ़ती है। अब बताओ, बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कहे छे कि वरसाद थाय तो ज्यां जुओ त्यां आपणे कीचड़ जोवा मळे। कीचड़ना कारणे रोगो फैलाय अने ज्यां त्यां गंदगी फैलाई जाय। एटले कहे छे कि वरसाद थवो जोईए के नहीं थवो जोईए। वरसाद थाय तो आपणे कूवा नदीओमां पाणीनो संग्रह थई शके अने आपणे ए पाणी लई शकીએ। वरसादना कारणे नहावा, पीवा माटे, खावा माटे आपणे पाणीनो उपयोग जरूरी छे। कहे छे कि वरसादना कारणे खेतोमां पण अच्छी अनाजनुं उत्पादन थाय। एटले कहे छे कि वरसाद थवो पण जोईए अने वरसाद न पण थवो जोईए। ए बेना आपणने अहींया तफावत दर्शावेलो छे। बाळको, અહીં આપણે આટલો વિડીયો જોયો। તમારે આ વિડીયો સ્ક્રીનશોટ પાડવાનો છે અને લખવાનો રહેશે। પરીક્ષા આપણી પાછળથી લેવાશે, એટલે આ પ્રકરણનું તમારે મેં તમને અસાઇનમેન્ટ પણ કરાવ્યું છે, તો તમારે આ પણ થોડું વાંચવાનું રહેશે।